आज के हमारे माननीय अतिथि प्रोफेसर अरुण एस खराट जी का ये आज हम सबके बीच में है और बहुत इनका जो काम है, जो शोध है, जो रिसर्च है, वो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस के आप फैकल्टी हैं और अभी प्रेजेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के अंदर आप हैं एज अ director IQAC and members of various committee, member of the highest committee of the university आप हैं और इससे पहले आप औरंगाबाद में भी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी और फेलोशिप्स के लिए भी आपने इंटरनेशनली जो है वो बहुत सारे रिसर्च और फेलोशिप करी हुई हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर, आप हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इस कार्यक्रम में। और एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे जो आज के हमारे चेयरपर्सन हैं। यस मैडम, थैंक यू मैडम। आई एम डॉक्टर and I welcome you, sir, on the behalf of the Director HRDC, UGC HRDC, Bhagat Phool Singh Vishwavidyalaya, Dr. Shefali Nagpal Madam, and our course coordinator, Dr. Bhupendra sir. Sir, I am thankful to the sir that he provided me opportunity to introduce you to all my faculty members, colleagues that are presently or currently undergoing this particular refresher course. Sir, you are currently a professor at the School of Life Sciences and has completed his MSc in microbiology from the Shivaji University, Kolhapur, and PhD from the renowned and the topmost research institute, Indian Institute of Science, Bangalore, and also have the fellow from the Rockefeller University, New York, USA, in the area of your specialization, that is bacterial antibiotic resistant genes, host pathogen interaction, and the environmental microbiology. Also work in the field of the medicinal plant, their antimicrobial and anti-cancer potentiality. Sir, you have a very vast and rich experience of 26 years, starting from TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, where you work as a scientific assistant from June 1993 till July 1994. सर जरा कट डाउन कर लीजिएगा, बहुत लंबा मत जाइएगा, लेक्चर को टाइम रहेगा प्लीज। इतना बड़ा सर आई विल ट्राई, नो जरूरत नहीं है इतनी, प्लीज 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 कट डाउन कर दीजिए। ओके यस सर, प्लीज कर दीजिए सर। नहीं टाइम जाता है सर, टाइम जाता है, टाइम इज इम्पोर्टेंट। Okay, sir. Sir has published various research papers into the renowned international reputed journals and peer-reviewed journals. Sir, I welcome you and I ask you, and with my request that present your research and the experience so that we can get the maximum benefit. Thank you and welcome you again, sir. Okay. Thank you very much. Let me share the presentation. I think this is right. Yeah. Okay, is my presentation visible? Yes, sir. Okay, let's then start it. So first part, we will be talking about the biomedical waste management and the environmental safety. And we'll take a case study, the COVID-19
period also as a case study. And then we'll go next to the our antibiotic related presentation. And yeah, so if I can have a slide, you can see that there are certain marked areas where these designated areas where the garbage is being collected. So what is the definition of biomedical waste? Is any waste which contains the infectious material or at least potentially infectious substance. And it might be contaminated material that is generated at a various healthcare facility. Generator might include doctor's office, the hospitals, whole hospital, laboratories, the dental practice zone, funeral homes also, besides hospital, the funeral places, the veterinary clinics, and the research where the clinical research is carried out or clinical aspect related research is carried out. So all these sites can be where the waste can be generated. Now, there are various terminologies used for the same, that biomedical waste, medical waste, regulated medical waste, clinical waste, biohazardous waste, and renewable medical waste, short form acronym, infectious medical waste or healthcare waste. So these all means a biomedical waste. Maybe the terms have been used by different people. The rules may apply to all persons who are generating the biomedical waste or those who are handling it by collecting, storing, transporting, or treating, disposing it. So all handlers and generator are involved. Now the act was first Environmental Protection Act was coined in 1986. The first draft for the biomedical waste was made in 1995, second was made in 1997, and the final rules regarding the biomedical waste management were floated on 27th of July 1998, which was further amended at a different time point, 2003, and recently 2016 was the new rules amendment. But then during COVID in 2020, March and June, further amendments have come in the function that we will take a look at. So in order to ensure the safety of biomedical waste, there were like various networks involved in working, not the government directly. So mostly the non-government organization, for example, Healthcare Without Harm. So you look after the health without causing any harm to the human being. Then SIGN was another network that says Safe Injection Global Network. I'm not sure how many of you have ever had injections from the needles which were not disposable. Is there anybody who has had an injection in the lifetime ever without use of a disposable syringe, needle? आप लोग वीडियो ऑन करिएगा क्योंकि आप टीचर है, आपको भी पता है कि when there is no response from the other side, it is not very mood or you don't get a mood or feel that you should teach. You're all here for promotion. अगर इसमें थोड़ा सा बैंडविड्थ लगता है तो पे कर लो भैया, आपका प्रमोशन होना है. वीडियो चलाने में क्या प्रॉब्लम है? Unless there is a technical problem. प्लीज टर्न ऑन वीडियो. किसी का एग्जाम्पल है कभी बचपन में इंजेक्शन लिया था जो डिस्पोजेबल नीडल नहीं थी? नो सर. नो. सो यू ऑल आर coming from the disposable generation. So this was a result of science. It used to be like एक पतीले में पानी उबल रहा है, ग्लास की सिरिंज हुआ करती थी और उसको एक नीडल लगेगी. 2 या 3 नीडल होते थे and the nurse or the compounder will keep on changing the needle. एक को निकाले फिर 2 फिर उबले पानी में डालें. That used to give like a swelling to the hand because पहले पेशेंट का इम्यूनोलॉजिकल मटेरियल दूसरे में जाता है एंड अभी स्वेलिंग ज्यादा नहीं होते हैं. एंटी इंसिनरेशन, सो दिस इज द इंसिनरेशन रिलेटेड.
G. Global Anti-Incinerator Alliance. So then zero mercury is another issue, and World Health Assembly has always worked on the patient safety. So patient safety is very, very important. In 2004, 17th of May, 168 countries together came and joined a convention in Stockholm, that is in Sweden, and they signed a treaty, and they signed environmental treaty to eliminate, if not eliminate, at least to restrict the production of persistent organic solution pollutant. कोई एग्जाम्पल है आपके पास जो persistent organic pollutant हो सकता है? Any example that you know persistent organic pollutant का? क्या हो सकता है persistent organic pollutant? आप लोग कोई है जो साइंस या विषय से जुड़े हुए हैं? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब क्या हो सकता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं मैडम, सर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी। हाँ, तो कोई एग्जांपल पता है परसिस्ट करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट? उतना तो नहीं पता, पर वो डीडीटी जो डालते हैं शायद। Yeah, you're right. DDT used to be, but there are a lot of other. Your polymers, most polymers are the persistent organic pollutant. Okay. Yes, sir. And India is also one of the signatory country in this convention. Then second convention came in Basel, that is in Switzerland, near the border of Germany and France. The transboundary movement control was signed, hazardous waste and their disposable. So minimize the generation of hazardous waste, whether it is a biohazardous, chemical hazardous, or a physical hazardous material, and dispose it to the closest point so that a leakage will not take place. Spread nahi hona hai dur tak. So as far as the regulation, I already have told you about it. I don't want to go into it. So patient safety, the World Health Assembly in 2002 passed a resolution calling member states to work for the patient safety. In October 2004, World Alliance for Patient Safety was formed, and they identified few challenges in relation to patient safety. They call clean care is safer care. उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मल प्लेज करा दी एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को इंडिया से दूर करने की शपथ ग्रहण कर ली. Okay. So priority areas were including basically safe clinical practices and hand hygiene. I think COVID में hand hygiene पे over and above everybody got to know about it. Safe surgical practices. क्या होता है safe surgical practice आपके हिसाब से? Safe surgical practice का मतलब क्या है? किसे कहेंगे हम कि safe surgical practice? Wearing proper gloves and other things. Okay, that's hygiene, sir. That is hygiene. What would be called like a safe surgical practice? Of course, you have to wear the gloves. That is a minimum. Even in the hospital, any corner, you must wear the gloves. Not necessarily only in the surgery room. Sanitize the surgery room, OD, sanitize. Sanitization, that's again hygiene. Again, hygiene. So how do you know? चलो ये सवाल आता रहेगा. Blood safety, that's also important because blood is a complete food and it can get easily contaminated. So the quality of the blood, contamination free, then many other immunological aspect also. Safe injection practice, healthcare waste management. Now, the problem in Indian perspective always is
सारे नियम होते हैं, नियम कहाँ नहीं होते, नियम हर जगह पे होते हैं, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज अ पुअर थिंग. लैक ऑफ ट्रेनिंग or poor training is the biggest lacuna. It hasn't been given a due priority by the most of the states, and there is no dedicated budget allocated for the same, and all states must focus on this aspect. Now healthcare associated infection is a growing concern. आपको पता है कि कोविड में, जरा वीडियोस ऑन करिएगा, बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑन नहीं हैं, प्लीज वीडियोस ऑन करिएगा. सो कोविड में आपने देखा होगा कई लोग जो हॉस्पिटल गए वो वापस नहीं आए. आपको लगता होगा कि वो कोविड से मर गए, नहीं, कोविड एक शुरुआत थी, कोविड से नहीं मरे. हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में दूसरे इन्फेक्शन हो गए, और उन इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मल्टी सिस्टेमिक फेल्योर की वजह से मर गए. ठीक है, तो कोविड एक ट्रिगर था. हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल कम्युनिटी एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, दे आर ऑफन 20 टाइम मच more problematic than the infections outside the hospital setup. So that's a very big problem, and India is having a huge number of hospital care associated infections. So what is the concern in this biomedical waste? A solid and a liquid infectious waste, sharp waste जो कि needles हो, spatula हो, then blades हो, scissors हो, knives हो. साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जहां केमिकल्स दिए जाते हैं, ट्रीटमेंट की जाती है वो केमिकल्स. फार्मास्यूटिकल वेस्ट, क्योंकि फार्मेसी होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, उनका भी वेस्ट होता है. रेडियोएक्टिव होस्ट, अगर रिसर्च विंग है, कैंसर की विंग है, तो रेडियोएक्टिविटी भी होगी. केमिकल्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स दे आर यूज्ड. आपने बोला ना सैनिटाइज करना है, तो उसका भी तो वेस्ट जनरेट हो जाएगा. प्रेशराइज कंटेनर्स वेरेवर दे आर यूज्ड, वो हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे, उसका भी एक वेस्ट बन जाता है. सो अगर हॉस्पिटल का वेस्ट हम 100% का डिवाइड करें तो जनरल वेस्ट इज एज मच एज 80%. दैट इज अ मेजर, एंड इट इज नॉट अ कंटामिनेटेड इफ यू आर केयरफुल. हजार्डस में हम फिजिकल केमिकल भी लेंगे, वो आ जाएगा, मान लो 7% वगैरह होगा, और 12% के आसपास आपका होगा, 12 या 5% के आसपास होगा इन्फेक्शियस मटेरियल. मगर अगर आप ठीक से सॉर्टिंग नहीं करोगे, इनको डिवाइड नहीं करोगे, ठीक से मेंटेन नहीं करोगे, तो 100% बिकम्स अ वेस्ट विच इज कंटामिनेटेड. तो आपको उस पे सॉर्टिंग पे बहुत ध्यान देना है. तो अभी आ जाते हैं सॉर्टिंग कैसे करते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट इट. देयर आर 10 कैटेगरीज, और क्या है वेस्ट मटेरियल उनमें देखते हैं. पहली में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट. एनाटॉमिकल वेस्ट कहाँ जनरेट होगा हॉस्पिटल में, कौन सी जगह पे? ओटी. ओटी. और कहाँ? ऑपरेशन थिएटर के अलावा कहाँ होगा? बोलिए बोलिए. मेनली ओटी का ही वेस्ट. मेनली हो गया, मगर सारा नहीं ना. मेनली तो एग्री कर लिया सर, उसके अलावा भी होता है. कहाँ होता है? बाकी जो वार्ड्स होंगे सर, वार्ड से भी होगा थोड़ा बहुत. कौन से वार्ड? कौन से वार्ड? जहाँ पेशेंट होते हैं वहां एनाटॉमिकल वेस्ट क्यों होगा? पेशेंट जहाँ रखे वहां नहीं होगा. ड्रेसिंग की या कुछ. हाँ, तो उसे ड्रेसिंग वार्ड नहीं बोलते, ड्रेसिंग रूम बोलते हैं. ड्रेसिंग रूम. और कहाँ होगा? इमरजेंसी वार्ड. यस, इमरजेंसी वार्ड नहीं, इमरजेंसी रूम. इमरजेंसी रूम, सॉरी. इमरजेंसी रूम नहीं होगा. जनरल वार्ड है सर. पैथोलॉजी लैब. नहीं, जनरल वार्ड में नहीं होगा. पैथोलॉजी लैब. पैथोलॉजी लैब. पैथोलॉजी में तो केवल और कहाँ होगा? ऑर्थोपेडिक एंड डिलीवरी. ठीक है, दीज आर एडिशनल. सर्जरी तो बाकी बोल ही दिया. एनिमल वेस्ट, जहां एनिमल यूज करके रखते हैं या एनिमल को डिस्कार्ड कर देते हैं. माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट विल बी देयर इन
from the general ward all the way to the all hospital part. West sharp, that is in the सर्जरी जहाँ पे होती है, ड्रेसिंग जहाँ पे होता है, इंजेक्शन जहाँ पे होता है, इवन जनरल वार्ड में भी इंजेक्शन होता है, तो इसीलिए वहां पे हर जगह पे होगा. डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जहां उनकी फार्मेसी है वहां पे मटेरियल होगा. सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट. इंसिनरेटेड एश. इंसिनरेशन इज अ प्रोसेस टू बर्न मटेरियल टू प्रोड्यूस एन एश. ठीक है, जला दो उसको राख बनने तक, उसे इंसिनरेशन कहते हैं. केमिकल वेस्ट. देन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज सपोज टू बी जला दो, नहीं तो जमीन में गाड़ दो. एनिमल वेस्ट इज ऑल्सो जला दो, नहीं तो जमीन में गाड़ दो. माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल हैज टू बी इंसिनरेटेड एंड बायोटेक्नोलॉजिकल मटेरियल को दोनों हो सकता है, इंसिनरेशन भी होता है, नहीं तो अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकती है. शार्प वेस्ट को पहले डिसइंफेक्ट कर लो, जो आपने बोला था कि उसे सैनिटाइज कर लो. चाहो तो ऑटोक्लेव करो, श्रेडिंग करो, म्यूटिलेट करो, ताकि उसमें शार्पनेस ना रहे. डिस्कार्डेड मेडिसिन यू कैन इंसिनरेट अगर सॉलिड है तो, और लिक्विड लैंडफिल कर दो. सॉलिड वेस्ट जो है ऑटोक्लेव कर दो, माइक्रोवेव कर दो. सो माइक्रोवेव में मेटल नहीं जाएगा. लिक्विड वेस्ट डिसइंफेक्ट कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो. इंसिनरेटेड ऐश, जो इंसिनरेशन ऊपर 3-4 जगह पे यूज किया तो उसकी जो राख तैयार होगी वो जमीन में गाड़ दो. केमिकल वेस्ट ड्रेन कर दो, मगर वो ड्रेन करने से पहले उसे सॉफ्ट पहले ट्रीटमेंट दे दो ताकि उसका इफेक्ट माइल्ड हो जाए, साइड इफेक्ट. अब ये 10 कैटेगरी का वेस्ट हम 4 प्रकार के बैग में हैंडल करेंगे. तो पहली है पीली कलर की प्लास्टिक बैग, जिसमें ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल मटेरियल, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड मटेरियल, और जहां जहां कपड़ा कॉटन है वैसी वाली सारी चीजें इसमें रखेंगे. ठीक है. या फिर उसमें ऑप्शन है कि इंसिनरेट कर दो या जमीन में डीप उसे बरी कर दो. दूसरा है लाल कलर की बैग. लाल कलर की बैग में डिसइंफेक्टेड कंटेनर डाल दो डायरेक्टली, जो भी डिसइंफेक्ट करते हैं उसे कंटेनर को डाल दो. सॉलिड प्लास्टिक बैग्स में, इसमें क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड मटेरियल, सॉलिड एंड सॉइल्ड वेस्ट होगा, उसे ऑटोक्लेव करो, माइक्रोवेव करो या केमिकल ट्रीटमेंट दो. Now, blue-white translucent bags are used, such as the plastic bags which are puncture-proof and sharp blaster. Why you have to have a puncture-proof? Because आप इसमें डालोगे तो पंक्चर ना हो जाए, उसमें छेद ना बन जाए बैग को, क्योंकि शार्प मटेरियल है. आप इसे ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं अगर मेटल नहीं है तो, एंड देन यू कैन डिस्कार्ड. ब्लैक कलर की प्लास्टिक बैग होगी जिसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन जाते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जाएंगे, इंसिनरेटेड ऐश जाएगी, नहीं तो केमिकल वेस्ट जाएंगे. ठीक है. एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिस्पोज्ड इन अ designated site or it has to be discarded or disposed into the secured landfill site. So technology we largely rely these days. हम ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी सब करेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता. टेक्नोलॉजी इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. Largely how you handle, who handles, and how careful you are. So segregate the waste, minimize the waste generation, reduce the use of hazardous substances so that you don't generate a waste or the process. And what is last you need is to have a waste audit. So what are the methods used? Autoclave. Autoclave कभी सुना है किसी ने? यस सर, किया भी है. किया है, अच्छा बढ़िया. और किसी ने सुना है? बोलते ही नहीं लोग. सर एक्चुअली No, sir. Yes, sir. माइक्रोबायोलॉजी लैब में मतलब देखा है. क्योंकि you should keep your eyes and ear open always when you walk in the society. Then you learn a lot, you know. Otherwise,
आपको पता नहीं चला। ऑटोक्लेव का सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, प्रेशर कुकर। आपके सबके घर में है प्रेशर कुकर, है ना? Yes, sir. Simplest example. ये भी बताते नहीं है लोग, अजीब है। आपको जब पढ़ाते हो स्टूडेंट बोलते नहीं तो आपको मजा आता है, या पढ़ाते ही नहीं हो आप लोग? लग तो रहा है आप पढ़ाते नहीं हो, या फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट बोले ना बोले। स्टूडेंट नहीं बोले तो मुझे तो लगता है क्लास बंद ही करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्लास है। अगर वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं, मेंटली इन्वॉल्व नहीं, तो क्या मतलब है उस क्लास का? तो बेसिकली बॉइलिंग मटेरियल एट अ हायर प्रेशर लेवल, so that's what is the principle of autoclave. It is a moist heat and that is known to destroy the live forms. Chemical disinfection that you already talked, phenol होता है, lysol होता है, डेटॉल होता है, mercury chloride होता है, बहुत सारे हैं। माइक्रोवेव, इट्स अ फिजिकल मेथड, बेसिकली हीट का ही है, सेंट्रली हीट होता है, इसमें मेटल छोड़ के सारी चीजें कर सकते हैं। इंसिनरेशन, बर्निंग टू प्रोड्यूस एन ऐश, सो नाउ इंसिनरेटर्स बनाते हैं, इंसिनरेटर में इंसिनरेट करते हैं। और एनी अदर मेथड अप्रूव्ड बाय द सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? व्हाट इज सीपीसीबी? Central Pollution Control Board. सेंट्रल Pollution Control Board. जी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो जी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो अगर आपके पास नई मेथड है तो सीपीसीबी से अप्रूव करा लो, और वो अप्रूव के लिए वाली मेथड आप यूज कर सकते हो। तो इन हाउस मैनेजमेंट के लिए पहले सर्वे करो, मीट विथ ऑल द हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, फॉर्म ए वेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, राउंड ऑफ वार्ड शुड बी टेकन सो दैट फंक्शनिंग कैन बी विजुअलाइज्ड, क्रिएट अ मॉडल वार्ड। तो सारा हॉस्पिटल पहले शुरू मत करना, आप छोटे जगह से शुरू कर लो जहाँ पे पेशेंट की संख्या कम होगी। दैट्स व्हाई यू आर हैंडलिंग इट लाइक दैट। द मॉडल वार्ड, देन इफ सक्सेसफुल, then you can enhance your activity to the other wards also. Suggest the current equipment procurement अगर जरूरत पड़ती है तो। Formal training should be given to all nursing staff. बहुत जरूरी, ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम देन थ्रू आउट द हॉस्पिटल। शुरुआत करो किसी एक वार्ड से, मगर धीरे धीरे उसे बढ़ा के पूरे हॉस्पिटल में लगा दो। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर जी। Yes, sir. Okay. So what is the right technology? You can think like incineration में क्या कर सकते हैं? पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें एनाटॉमिकल वेस्ट बॉडी के पार्ट है, एनिमल का कार्कास है। नो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक्स आर इंसिनरेटेड, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल होते हैं, वो आग पकड़ लेंगे। ऑटोक्लेविंग, एक्सेप्ट द बॉडी पार्ट एंड पैथोलॉजिकल वेस्ट, सारी चीजें वहां पे चली जाएगी। माइक्रोवेविंग में all things can be microwaved without exception of basically the metal and a pathological waste. And chemicals में जनरली प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, उनको हम वाइप कर लेते हैं। तो ऑफ-साइट मैनेजमेंट में ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन अ कॉमन फैसिलिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, 90% non-burn, 20% waste burn, etc. It should be 1 kilometer away from the residential area, so that the residents living will not be subjected to become the vulnerable. That's a very important thing. You have to be very, very careful about it. Then one operator is allowed to cater up to the 10,000 beds, which are situated in the 150 kilometer radius. अब ये जनरल स्टेटमेंट है, एक सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ठीक है, मगर यही दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। समझ गए ना? अगर आपके 10,000 बेड हो जाते हैं 150 किलोमीटर से कम एरिया में, तो आपको वहां पे दूसरा साइट बनाना पड़ेगा। समझे ना? यस सर। डिस्टेंस सेकंड है, पहला ही उस प्रोजेक्ट जनरेटर साइट की, हैंडलिंग साइट की क्षमता बहुत जरूरी है। अगर वो क्षमता से ज्यादा हो रहा है तो उसमें थोपना नहीं है। Segregation is the key role
of the generator, operator can report mixing of the waste to the authority, so that authority can take an action on it. So what are the issues actually? Hurdles, capacity issue, priority is not given, resources are not allocated, fixed mindset. What do I mean by fixed mindset? कोई बताए fixed mindset का मतलब क्या होगा? क्या है फिक्स माइंडसेट का मतलब? फिक्स माइंडसेट का मतलब सर ये हुआ कि जो पहले से आदमी प्री डिफाइंड सोच रखा है उसने उसी को करेगा, चाहे कितना भी उसको आप बताएं कि इस तरह कर ले या उस तरह कर ले, वो नहीं करेगा। अच्छा, एक और माइंड कोई सेट तरीका? कर लिया कि ये करना नहीं है तो करना नहीं, माइंड सेट कर रखा है। जैसे सर आजकल कुछ लोगों को आप कितना भी समझा लो कि भाई अब थोड़ी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, आप इस तरह करें, तो उनका माइंड सेट है नहीं, पुराने तरीके से ही करना है। जैसे सर मैं एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ। मतलब सर कितनी बार भी बोले वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, ऐसे सर बोलते यस रहते, यस, उसमें क्या माइंड है? सेट कर लिया कि हमें ये करना देसी है। भाषा में कह सकते हैं सर ढीठ होना। हाँ, ढीठ होना नहीं, मतलब एक सिंपल एक बता दूं कि इसे बोलते चलता है तो क्या चलता है, सब चलता है, ऐसे चलते रहेंगे। सो नो मैटर व्हाट, people don't want to change the mentality because they believe everything is smooth. जैसे सर Believing everything is smooth and actually being smooth is two different things. जैसे सर पुराने जो लोग हैं उनको अगर आप कहो कि एटीएम या ऑनलाइन से करो तो वो कहेंगे नहीं, हम बैंक जाके ही पैसे निकालेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, दैट इज नॉट अ माइंडसेट, एक्चुअली दैट इज बिकॉज देयर कंफर्ट लेवल होता है वो, दैट्स अ डिफरेंट। क्योंकि इवन आई एम अगेंस्ट ऑनलाइन बैंकिंग। सोचिएगा 7 साल परदेश में रहने के बाद आई एम अगेंस्ट ऑनलाइन बैंकिंग, क्योंकि आई डोंट हैव कंफर्ट। इट्स नॉट दैट आई कांट डू इट, वाई बट आई सर? जस्ट डोंट हैव कंफर्ट। सो वाई सर? क्यों सर ऐसा क्यों है? नहीं, बिकॉज आई कीप ऑन एंड ऑफ हियरिंग समबडीज का 8 लाख 10 लाख निकाल ले लिया, ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत होता है, तो आई एम फाइन विद इट। नहीं सर, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, कुछ लोग लाइन में ही जाके No, that's not banking. That's not banking. That I do it. Okay. That I do it. Bookings कुछ लोग all उसको apps अवॉइड करते वाला हैं। काम कर लेता हूँ. That I do it. But banking का पूरा ऑनलाइन नहीं करता हूँ मैं. So that's a comfort level. That's not mindset. You know, following something is a herd mentality. That is what most Indians do. ठीक है? और second thing is that फिक्स माइंडसेट चलता है तो क्या, इतने सालों से चलता है, अब नया क्या करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो यू बिलीव दैट जब तक आपकी बेटी भाग जाती नहीं है तब तक तुम्हें लगता नहीं कि समाज में प्रॉब्लम है, या आपकी बेटी पे कोई गलत नहीं होता है तब तक लगता है कि सारी लड़कियां दुनिया में सेफ है। ये गलत है ना, दैट्स अ बैड एग्जांपल ऑफ अ माइंडसेट, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। पड़ोस की लड़की को परेशानी हो रही है, पड़ोस का लड़का परेशान कर रहे हैं, मगर बाकी पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी को जब तक नहीं होता है तब तक ऑल इज वेल। इज दैट करेक्ट? ये माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल राइट सर। तो ये होता है इंजेक्शन सेफ्टी, क्लिनिकल केमिकल सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज still haven't found a space in the development and the planning of hospital, which is not a very good thing. And second most important aspect is the training. सबसे डरावनी बात है कि मेडिकल के करिकुलम में भी इसका अंतर्भाव नहीं हुआ है। तो in the name of developing new curricula and adding advancement, often why I say we, because you're also involved in designing curricula, if not today, tomorrow. Often we give so much of importance to the current issues and उतने ही घंटे होते हैं पढ़ाने के, तो we have to remove something. No, it's a law of thermodynamics. Energy cannot be created, energy cannot be destroyed, it can only be converted. तो मान लो सेमेस्टर में इतने दिन इतने घंटे हैं, उसमें इतना पढ़ाया जाता है, तो उतने में जो बैठेगा एडवांस चीजें डालने के चक्कर में पुरानी चीजें हटा देते हैं, और पता चलता है कि वो फाउंडेशन ही खत्म है। अगर जिसकी नींव ही ठीक नहीं है तो वहां एडवांस क्या बनेगा? वो तो इमला नहीं बनेगा, वो तो गिर जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. So you always required to have
a strong foundation and training is must. आप बताइए, सब लोगों को लगता है कि मैं YouTube में चला जाऊं, डाउनलोड कर लो और जो मन में आए चीज किचन में बना लूं. इतना आसान नहीं होता है. वहां 10 मिनट का वीडियो है. आई गिव अ बेस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई किचन में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए. क्रोइसॉन्ट करके एक प्रकार होता है खाने का. किसी ने खाया है कभी क्रोइसॉन्ट? नहीं सर. नहीं खाया है? नो सर, नो किसी सर. ने एक ने तो खाया होगा. बटर क्रोइसॉन्ट करके मिलेगा. बेस्ट प्लेस आई कैन टेल यू, लाइक कॉफी शॉप्स, एक्सपेंसिव कॉफी शॉप्स. तो वहां पे जाओगे तो क्रोइसॉन्ट मिलेगा. एक्चुअल बेकिंग है 15 मिनट का. मल्टी लेयर, बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्ट. पर बनाने के लिए वीडियो में दिखा देगा 4 मिनट में. 4 दिन लगते हैं बनाने के लिए, क्योंकि इनएक्टिव प्रिपरेशन बहुत लंबा होता है. तो इनएक्टिव प्रिपरेशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही इनहेरिट होगा. आपके बच्चे आपको फॉलो करें, आपने किसी को फॉलो किया है. सारी ट्रेनिंग डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, जो कि आप पढ़ाते हो प्रैक्टिकल पार्ट स्टूडेंट्स को. बाकी तो आप जैसे करते हो स्टूडेंट को बताते नहीं हो, मैं स्टूडेंट पिकअप कर लेते. राइट? आपके घर में भी वैसे ही होता है. आप लोगों को पता नहीं होता आप क्या गलतियां कर रहे हैं, मगर वो गलतियां या सही है जो भी है आपके आजू बाजू के सारे लोग पिकअप करते हैं. सो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर इट इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन. इवन एट हॉस्पिटल लेवल देयर इज अ माइंडसेट कि नहीं, कोई पेशेंट की कंप्लेन नहीं है, कोई कोर्ट मैटर नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है. राइट? देयर इज अनदर मैटर. इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सीनियर मैनेजमेंट. या आजकल ना सीनियर मैनेजमेंट का शब्द आपको भी समझ में आता होगा. हर चीज में सीनियर मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस होता है. राइट? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है. हॉस्पिटल में नहीं, आपके इंस्टीट्यूशन में भी आपको अनुभव आएगा. रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड द प्रायोरिटाइजिंग इज अ बिग इशू. गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर द बिगेस्ट डिफॉल्टर्स. बड़े बड़ी बातें करेंगे मगर होता तो कुछ नहीं वहां पे. कैपेसिटी बिल्डिंग इज इशू. इम्प्लीमेंटेशन इज अगेन ए बॉटलनेक. Who should be held responsible? अगर कुछ भी आपने देखा होगा, कभी न्यूज़पेपर में सुनते होगे कई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी एक इंटेंसिव केयर यूनिट में या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगने की वजह से, कुछ होने की वजह से हॉस्पिटल में इतने लोगों की मौत हो गई. पढ़ा है कभी ऐसे? जी सर. पढ़ते हैं सर. हाँ, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सही व्यक्ति पे फिक्स हो जाती है, आपको लगता है? यस सर. नहीं सर, कहीं नहीं होती सर. बिल्कुल भी नहीं होती. ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि इसमें फिर बलि का बकरा किसी को तो बनाया जाता है और जो है बेचारा फंस जाता है, और जो कल्प्रिट है ऐसे रह जाता है बहुत बहुत टाइम. नॉट ऑलवेज, बहुत टाइम. Monitoring and accreditation therefore is a very very important, and periodic waste audit with reference to their earning and spending the money is very need of our. Then at the treatment level, untrained staff, poor maintenance of instrument, effluent treatment plants, then maintenance of record maintenance तो होता ही नहीं है. चाहे वो आपके कॉलेज में लगाया हुआ यूवी फिल्टर वाला पानी का है, उसका भी रिकॉर्ड नहीं होता है. कब साफ किया था किसी को पता नहीं होता है. राम भरोसे सब चल रहा है. नो पावर बैकअप्स. क्लोज डोर सिस्टम, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है. डिफरेंशियल चार्जेस. आपने देखा होगा एक ही शहर में एक ही चीज के लिए 4 दवा खाने के रेट सेम नहीं होते. करेक्ट है? यस सर, करेक्ट. Yes, sir. Flaw in the system. Profit driving is the mechanism. People are only money making. अब आपने नया शब्द सुना होगा कि सीजन. हॉस्पिटल में भी सीजन शब्द बोलते हैं. कोविड का सीजन चल रहा है, इसका सीजन चल रहा है. पैकेज सुना होगा शब्द. कोविड में पैकेज शब्द सुना? यस सर. Have you heard a package word in COVID? यस सर, यस सर. इससे पहले कभी पैकेज शब्द हॉस्पिटल में सुना था? वो तो सर डॉक्टर भी कहते हैं कि सर्जरी में होता है सर. हमारा ये सीजन है, इतने से इतने महीने हमारा सीजन चलता है. फिर डेंगू वाला होता है सर, उसमें भी बहुत. डॉक्टर लोग भी इसको प्रीफर करते हैं, सीजन ही बोलते हैं डॉक्टर लोग भी. कितनी बुरी बात है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी मेंटालिटी इज फिक्स माइंडसेट. सोसाइटी को कोई बुरा नहीं लगता है. इवन डॉक्टर अब ये सीजन थोड़ी ना होता है. हाँ, ये सीजन बोलते हैं डॉक्टर भी. हाँ,
कहीं पे 4 लाख में ट्रीटमेंट हुई कोविड में, तो कहीं पे 10 लाख में, कहीं पे 2 लाख में, राइट? सो एवरीबडी वाज अ प्रॉफिट ड्राइविंग एंड देयरफॉर एक्रेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। आप इतना तो मानोगे, अगर नैक नहीं होती तो आपके कॉलेजेस में जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं, शायद उतनी नहीं हो पाती। सही है कि नहीं है? यस सर। भौतिक Yes, sir. सुविधाओं में सुधार नैक की वजह से हुआ है। या अदर इंस्पेक्शन टीम जो भी आती है सर। हाँ, मतलब एक एक्रेडिटेशन का जी, प्लेटफॉर्म जी। कोई तो जब तक वो नहीं आते ना, हम डंडे के बगैर मानते नहीं ना कहीं से कंपटीशन, डंडा, ये चीजें जब तक नहीं होते हम मानते नहीं। अदरवाइज एवरीबडी शुड हैव बीन डूइंग इट। तो आगे कैसे जाना चाहिए? पहला, रिसोर्स अलोकेशन फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट सब हॉस्पिटल्स में करना चाहिए। मेंटेन द पूल ऑफ ट्रेन स्टॉक एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल और अ ब्लॉक लेवल। मतलब आपके प्रत्येक जगह पे नहीं हो, मगर ट्रेंड अगर स्टाफ आजू बाजू में होगा रिजर्व में, तो you can always use them. Stakeholders involvement is very important. Incorporate this all aspect in the curricula of medical, nursing and paramedical institutions. Upgrade the latest development in the biomedical waste management, which is done during COVID also. Waste minimization policy must be adopted by every hospital. And selection of appropriate technology is a must. एंड प्रो एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट पॉलिसी। अब ये ट्रेंड हो गया एनवायरमेंटल सेफ्टी बताने का, कहने का, मगर हम कोई भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ अपनी एक लग्जरी छोड़ने को तैयार नहीं है। सही है क्या गलत है? मगर एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बातें करेंगे। स्पेशली हमारे जैसे टीचर लोगों को तो ना आइडियल चीजें बोलने को बता दो तो भाई साहब 1 घंटा बहुत बोल लेंगे, मगर वहां से उतरते उतरते 10 चीजें तोड़ देंगे। मतलब समझे ना, 10 चीजें वहीं पे तोड़ देंगे। एंड दैट्स द थिंग दैट वी वुड लाइक टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ प्रो एनवायरनमेंट, बट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे पता नहीं। फील गुड लुक गुड वही इंपॉर्टेंट है। So mercury is also another emerging issue. Injection safety has made nowadays absolutely disposable syringe and the needle. Chemical safety monitored use of glutaraldehyde, formaldehyde, benzene and cytotoxic drugs etc. So now 2016 का रूल में basically वही definition है। तो healthcare facility and common biomedical waste treatment facility. Okay. Hospital care facility. Report major accidents, including accidents caused by the fire hazards, blast during handling of biomedical waste, and remedial action taken on the records. Make available the annual report and its website, and all the healthcare facilities shall make own website within 2 years. अब ये सब बोला है, but how many of them have actually created, that is another issue. Waste management at Rule 3, no occupier shall establish on-site treatment and the disposal facility if a central biomedical waste treatment facility is available at a distance of 75 kilometers. So सबने अपनी अपनी जगह पे बना के उसका स्प्रेड होना नहीं चाहिए. Authorization. Every occupier or operator handling biomedical waste, irrespective of the quantity, shall make an application form 2. So अभी इसमें प्रोफॉर्मा बना दिया है, वो सब ने करना है ताकि उसमें एंट्री सबकी हो जाएगी. एडवाइजरी कमेटी बनानी है. Advisory committee, every state government shall constitute an advisory committee under the chairmanship of the health secretary to oversee the implementation of the rules. Representatives from the departments of health environment, urban department, animal husbandry, state pollution control board, urban local bodies or municipal corporation, that is like Nagar Nigam hoga ya municipal corporation hoga. Representative are to be considered. Advisory committee is constituted and that should meet every 6 months at least, and they should take a review of the situation. Okay,
State government shall constitute district level monitoring committee also under the chairmanship of DC, ADC to monitor the compliance to the rules made. Annual report should be submitted before 30th of June and forwarded by the 31st of July every year. Any person aggrieved by an order made by the prescribed authority under these rules may, within a period of 30 days from the date on which the order is communicated to him, prepare to appeal in the form number 5 that is also made available. So same thing, now the fifth color has come in, the green color. Earlier we talked about a yellow color, red color, white, and the blue color. Now yellow color will have a solid waste, infectious waste, the cotton swabs, the pad tampons, gauzes, the bandages, linens, that is clothings, body parts, discarded medicine, everything is to be burned out to produce an ash, that is incineration. Red bin mein hoga infected plastics, catheters from the hospitals, tubings, the bottles, plastic bottles, gloves, and blood bags. Anything that is made from the polyethylene or polymer substance and the plastic is there, you can autoclave and recycle. White bin hoga needles with or without syringes, scalpels, blades. So it is hazardous, the most sharp ones. Autoclave and recycle. Blue bin, broken glass, then vials and ampoules. So autoclaving and recycling. Green bin, food waste, fruit peels, seeds with no polythenes. There are no polythenes used. Polythenes are in the white bins. Then you can use them in the composting. So you can see there is a good amount of progress made in the blue and the green bag. Now, in the light of the COVID-19, how it has gone. Government of India created isolation wards or ICUs, sample collection center, laboratories, quarantine camp, and centers at home care. So these are all the places where the biomedical waste was generated. Now, biomedical waste generated during diagnosis, during treatment, or even during vaccination on the animals, humans, and in the research activities. That was a place where the biomedical waste was generated. Now, the rule was 2016 rule was amended in 2018-19, and further during COVID, the CPCB made modifications further into the 2020 also. Color categories, yellow, red, white, blue, and the green also has been introduced. So stakeholders, there are lots of them that starts from the state, central government, Ministry of Health, Family Welfare, and even your local bodies are also considered in this one. Now in the 2020, there are 3 amendments. First came in the 18th March 2020. Second came on 25th March 2020. What is the difference between 18th March and 25th March 2020? 7 days. What else is there difference? Any idea? It's a recent history. लॉकडाउन ठीक से बताइए, आप हो वहां पे, मगर क्या फर्क है 18 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020? आप हो ट्रैक पर ही हो। थोड़ा सा प्रिसिजन चाहिए। Just give it a try. हम्म 18 मार्च और 25 मार्च 2020 में क्या फर्क है?
कोविड के कारण से लॉकडाउन की घोषणा की थी। कब घोषणा की थी तेजवीर सर? 22 मार्च की रात को 12 बजे के बाद। 22 मार्च को 20 मार्च को 22 को की थी कि अब से रात के 12 बजे कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इज इट? यस। 22 को नहीं थी सर, वो 22 को तो क्या था, 24 को शायद हुआ था, और 22 को तो अपनी इच्छा से घर पे रहने वाला जो अनाउंसमेंट था। थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। आप लोग हो ट्रैक पर ही हो कोविड का लॉकडाउन से रिलेटेड। जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू was on 21st and 22nd. 22nd सर, 22nd को थे। हाँ, that was a जनता कर्फ्यू. So the actual lockdown started on 25th March. Midnight of 24th means 25th March. Okay. So midnight को दिन बदलता है। और एक्चुअली कोविड का अवेयरनेस शुरू हो गया था 12 मार्च के बाद। 16 मार्च से JNU was the first university to lockdown in India. 16 मार्च को पहली यूनिवर्सिटी। 25th February in US president कम अहमदाबाद, तब भी थोड़ा थ्रेट परसेप्शन दिया गया था। वो बात अलग है। I'm just referring not the whole COVID progression. Actual lockdown का जो concept शुरू हो रहा था, that was in I agree with you, but same period of time. Okay, so COVID was identified in November 2019. That is a different thing. And the first case in India was reported on 30th of January 2020. 3 students coming from the Wuhan, Keralite student, were found infected. So उतना नहीं जाना है, मैं उस पे 50-60 लेक्चर दे चुका हूं, हमें उसमें नहीं बोलना है, ठीक है। तो 18 मार्च was a time when India was thinking about implementing the lockdown all over, and that's where the situation was, right? And 25th March actually lockdown was done. Then later on 18th of April, just 1 month after the first amendment, 18th March. So there's no other logic for 18th of April. They continued to make certain changes due to the increasing number of cases. So handling, treatment, disposal related changes were recommended on 18th of March. Quarantine camps, home care camps, sample collection centers. At that time, on the 18th of March, there were only 3 centers where the testing was done in India. How many? 3. And after a year, how many became? Any idea? Roughly? 3 जगह पे हो सकता था RT-PCR. अब सेकेंड लॉकडाउन जब आया हमारा अप्रैल 2021 में, तब तक कितनी बन चुके थे सेंटर्स? मैक्सिमम पैथोलॉजी लैब सब कर रहे थे सर। तो कितनी रफली रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड की बात चल रही है, जो भी बोलते हैं हम रिकॉर्ड की बात करते हैं। कितने थे अप्रोक्सीमेटली? को ऊपर नीचे हो सकता है, चलो पता नहीं होगा। मोर देन 3000. हाउ मेनी? And capacity was, India's capacity was almost 200 tests per day, and now it was 2 lakh tests per day. Right. So it was so much of change. Now revision was made on the March 25th, 2020. Specific duties of quarantine camp and home, as well as home care. Then all those with or without the Center for Biomedical Waste Treatment Plant was also being considered. Then second revision was made on 18th April, where the PP related, because PP became very common, particularly handlers, the lab waste, and a clarification was made on the management and generation of the general waste. So mask and gloves became so common in the month of April.
Based on the current knowledge on COVID-19 and existing practices in management of infectious waste generated in healthcare facilities, while treating viral and other contagious diseases like HIV and H1N1. H1N1 was a previous to the that is a bird flu. The guidelines will be updated if required, and guidelines were brought in the plan. So you can see the labeling was made. Now these are the color codes same, but there may be general waste and the COVID related waste. So the color codes are also followed, and they were clearly labeled as a COVID-19 biomedical waste. So separate them, and color code should be followed, and label them as a biomedical waste of color. Isolation ward, nursing station, and patient area, you can see they are very well nicely maintained, and all the thrashers सर आवाज ब्रेक हो गई. Sir, your voice is not audible right now. You're not audible. वॉइस नहीं आ रही सर. तो हिमांशु जी बीपीएस में तो 17 को जाना है ना, या 18 में? 16 में. 17 को तो वहां से स्टार्ट है, तो 16 को जाना होगा. अच्छा अच्छा. आप लगता है घर पे ज्यादा मन लग रहा है आपका. हिमांशु जी आपका माइक जो है म्यूट है. हिमांशु जी तो पूरा ही ऑफलाइन करना चाहते थे. चलो कुछ आधा ही सही. ठीक है. तो अमरपाल जी किस दिन पहुंचने का प्लान है? भाई जब आप लोग बुलाओगे जब ही आ जाएंगे. तो क्योंकि 17 से स्टार्ट है, ट्रेवलिंग हो जाएगा, तो फिर वो जाके ठीक नहीं रहेगा, तो 16 को पहुंचना ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से. बात कर लेंगे आज भूपिंदर सर से, क्या प्रोग्राम है, कब बुलाने का है ना. हाँ आज बात कर लेंगे. एक बार कंफर्मेशन हो जाए सर कि कब से आज पूरी तारीख हो गई ना. आज 14 हो गई ना सर. कल के दिन बीच है, परसों जाना पड़ेगा. आपको जो भी इनका प्रोग्राम है उसे डाल देना चाहिए ग्रुप में. हाँ क्योंकि सर यहाँ से हरिद्वार से तो लॉन्ग जर्नी पड़ेगी, तो फिर मॉर्निंग में चल के फिर पॉसिबल नहीं होगा, तो 16 को ही जाना होगा. हाँ एक दिन पहले आइए, मोस्ट वेलकम. बिल्कुल. गेस्ट हाउस में रुकिए. तो आप कब पहुंच रहे हैं वेलकम के लिए? हम भी वहाँ हम भी गेस्ट हाउस में रुके थे पहले कई, ठीक है. जब हमने प्रोग्राम करा था रिफ्रेशर. ठीक है. 15 दिन गेस्ट हाउस में रुके थे. सर तो डिस्कनेक्ट हो गए शायद. डिस्कनेक्ट हो गए सर, वो पता नहीं, कांटेक्ट नहीं हुई शायद. लगता है नेटवर्क इशू हो गया सर के साथ में. और इशू हुआ होगा नंबर हो. डॉक्टर विपुल जी भी गायब है आज. विपुल जी, अरेंज जी याद कर रहे थे आपको.
अरे हरेन जी किसी को याद नहीं कर रहे भाई। आज विपुल जी एक्टिव नहीं है, कुछ तबीयत ठीक ढीली लग रही है मुझे। आज ये रात सोए नहीं ठीक से बेचारे, हाँ, अरे किसी माइक बर्थडे तो पार्टी कर में लो। गए थे किसी बच्चे नहीं, की। हाँ, एक्चुअली क्या है, आप सबने एक वो दायित्व दे रखा है ना, अब बच्चों की फीस माफ की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं गरीब बच्चों की, तो डिप्टी डीन होने के नाते वो आज सबके फॉरवर्ड भी कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा बिजी भी नहीं था। नहीं, और आज की ऑफिशियली आप डेट में फॉरवर्ड आप नहीं कर फॉरवर्ड ही नहीं सकते। कर सकते, गलत काम कर रहे गुरु हो। जी ऑफिस का काम तो सारी दुनिया कर रही है। हाँ, लेकिन बोल विपुल के नहीं जी कर ऑफिस सकते का काम तो आप। सारी दुनिया कर रही है, आप नया कौन सा कर रहे हैं? अटेंडेंस आ सर ने गई क्या? ज्वाइन कर लिया आप दोबारा। बताओ अटेंडेंस का लिंक भेज दे भाई। भाई, वो आ है गया स्क्रीन पे लैपटॉप पे। नहीं आई यार, भेज दे भाई। चलो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, फिर करते हैं। ठीक है, भेज दे। हाँ, थोड़ा सा ना यहाँ नेटवर्क का इश्यू हो गया JNU में सर भी। पूरे so देश में ही है I- सर, पूरे देश में ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। problem, sir. We have to find out the solution. No problem, ठीक है। sir. So responsibilities for the persons operating quarantine camp, that is the solid waste generated from the quarantine centers of the camps, are to be handed over to the waste collector, which is identified. Then biomedical waste from quarantine center, the camps, is collected separately in yellow bag and provided to the yellow bags bins. Then persons operating quarantine camp and the centers must collect the biomedical waste and bring them to the central biomedical waste treatment facility. The persons working in the persons who are in the quarantine home or home care hand over yellow bags with biomedical waste to the authorized waste collector, who will come to your door or the local bodies, deposit biomedical waste in yellow bags designated, hand over to the people so that it will be taken care by the central biomedical waste treatment plant low site. Then at a quarantine camp or the home care syringes, date expired or discarded medicines, use mask, gloves, drain bags, urine bags, body fluid, or blood soaked tissues, cotton, empty ampoules. Those are all domestic hazardous waste, should be defined under the solid waste, that is SW management. And they should be disposed as per the biomedical waste management rule of 2016. Now, general waste as per the solid waste management under the 2016 rule, use masks and gloves, home quarantine or other household bags for the minimum of 72 hours prior to the disposal, and then finally dispose as a solid waste. Now, what are the duties to be performed at the Center for the Biomedical Waste Treatment Plant? So, report to the State Pollution Control Board or PCC receiving the COVID-19 waste. Dedicated vehicle is allocated to collect the waste, sanitize with sodium hypochlorite, that is SOPO, and every trip that carries COVID-19 waste, which is disposed of promptly on the receipt, not to be kept like that, may operate for extra hours and then inform to the Pollution Control Committee or the State Pollution Control Board. Maintain the separate record for the collection, treatment, disposal, so that it will be understood collect कब किया था और dispose कब किया, treatment कब किया, उसमें gap कितना है, hours में कितने हैं, कोई लापरवाही है, पता चल जाएगा. Workers should be ensured that training is very, very important. How to handle and how to collect. PP, that personal protective equipments. Triple layer mask. Then the splash proof aprons are to be used so that it will not get absorbed. Gowns or nitrile gloves, gum boots, safety goggles, etc. should be provided as a part of the PPE. Do not allow any workers showing signs and symptoms to work. Send them on the leave with a pay protection. So no rule was there that you will make people to work from the home with no salary. So duties at the Pollution Control Committee or the State Pollution Control Board
They're supposed to maintain the record of COVID-19 treatment wards, quarantine centers, home, proper collection and disposal of biomedical waste as per the biomedical waste rules 2016 and SOPs. Allow the central biomedical waste treatment facility to operate for extra hours if that is required. Authorization of quarantine camps, allow the staff of biomedical waste to work there. States, rural or remote areas, existing captive facilities should also be made operable. Coordinate with the facilities so that the treatment can be done very easily. The urban local bodies, basically ensuring the safe collection and disposal of waste. Quarantine camp से लिया है, quarantine home से लिया है, home care system से लिया है. Then inform to the State Pollution Control Board time to time. Quarantine camp में it is collected, identified, and then treated also. Urban level bodies will envisage the disposal of biomedical waste from the quarantine home care, and engage and authorize waste collectors for door-to-door collection, transfer to collection point for further pickup. And urban local bodies are also engaging services of Center for Biomedical Waste Treatment Facility to collect the waste directly from the doors. Provide yellow colored bags, then ensure workers are going door to door and collecting the same so that, Training on the sanitization, how to collect is very, very important. Authorized waste collector with adequate PP that we already mentioned, like what are the needs of it. Required to be worn all the time. ऐसे नहीं कि 2 घंटे यूज कर ले, 4 घंटे उसके लिए बाकी फिर छोड़ दिया. Collecting from quarantine center and quarantine homes, home care, waste deposition. Use dedicated carts, trolleys, vehicles for transport of biomedical waste. Ensure sanitization of vehicles with 1% hypochlorite. Waste collectors spray the 1% hypochlorite on the bin. That is sanitization. Common waste deposition centers, that is dhalos. Solid waste quarantine home, वहाँ से उठा लो, and facilitate the smooth operation. Additional measures as per the guideline. Then transmission risk is a huge. ये सारा कर रहे हो तो उसमें ट्रांसमिशन का रिस्क काफी हद तक है. तो throughout the sewage is also possibility. Operators that solid sewage treatment plants can also be there. Agencies, healthcare facilities, isolation wards, operators for the terminal sewage treatment plants, etc. Agencies to efflure disinfection of treated wastewater as per prevailing practices to inactivate the coronavirus. Operators of effluent treatment plants or sewage treatment plants, they should be following the standard operating practices. The practice should be a basic hygiene precaution and a wear PPE. Then COVID-19 pandemic, basic utilization of treated wastewater in utilities within the healthcare facilities may be avoided. अभी एक मेरा कॉमन सवाल है, अगर आपको किसी एक हॉस्पिटल को चूज करना है सर्जरी के लिए, ठीक है, तो आप हॉस्पिटल का चॉइस कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? किस आधार पे आप किसी हॉस्पिटल का चॉइस करेंगे? आप सबके लिए सवाल है. परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर्स टीम, तो कैसे जज करोगे आप? हाउ डू यू जज द सेम? सर उनका रिकॉर्ड क्या, एक्सपीरियंस क्या है, जो हमने उनके बारे में रिव्यूज क्या है? उन्होंने सर इंटर्नशिप और प्रैक्टिस कहाँ पे की है? होल्ड ऑन पास्ट में रिव्यूज मतलब क्या? होल्ड ऑन, एक होने दो. रिव्यूज मतलब क्या मैडम? मतलब जो हमने पहले सुना है उनके बारे में, या पढ़ा है, या क्या सुना है? क्या सुना मतलब क्या सुनना चाहते हैं आप? कि सर जो उन्होंने ऑपरेशंस या जो भी सर्जरीज करी हैं उनका क्या मतलब अच्छा रहा है, वही सब सर.
ओके, परसेंटेज ऑफ सक्सेस कहना चाह रही है मैडम। यस सर। ओके, सक्सेस परसेंटेज। ओके, कुछ और? मैं कुछ और देखूंगा। मान के चलो परसेंटेज ऑफ सक्सेस तो अच्छा ही होता है। जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, एम जैसे एजुकेशन एम्स कहाँ वगैरह से है, को वो किस प्राइवेट कहाँ से हॉस्पिटल से है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, इट्स ये भी बहुत बड़ी बात है ये आजकल। बहुत बड़ा होता है कि क्योंकि प्राइवेट में तो लोग पैसे दे के एडमिशन हो जाते हैं, गवर्नमेंट में थोड़ा ठीक से किया जाता है। गवर्नमेंट में एडमिशन होना मुश्किल है, मगर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, उसका क्या करेंगे? नहीं सर, एम्स में तो पूरा वो मिलता है, एम्स वगैरह अगर में हो जाए। अरे एम्स भैया कितना 1% भी नहीं है, एम्स की क्यों बात कर रहे हो, छोड़ दो। हम यही प्रॉब्लम है ना, असिस्टेंट प्रोफेसरों की बीमारी है कि बहुत आइडियल बातें करते हैं, फैक्चुअल नहीं बोलते। प्रोफेसर नहीं ऐसा फैक्चुअल बात कर भैया। मुझे यूरोलॉजी में, मैं एम्स में मेरे कई दोस्त काम करते हैं, यूरोलॉजी सेक्शन में अपॉइंटमेंट कम से कम 8 महीनों से नहीं मिल रही है। एम्स की बात कर रहे हो, सारा जुगाड़ होने के बाद भी नहीं सर, जुगाड़ से तो मिल जाता है। नहीं मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। तो तो 8 महीने जुगाड़ किसी का को, कोई वहां पे स्पेस नहीं है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 8 महीनों से सर नहीं मिल रहा है, मानिएगा, मुझ पे विश्वास रखिएगा। आई एम कोलैबोरेटिंग विद एम्स प्रोफेसर्स फॉर माय ओन वर्क, मगर पेशेंट को एक दिखाने के लिए 8 महीने से मिल नहीं रहा है। वो कौन सी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो पेशेंट के लिए है ही नहीं, उसकी सिस्टम की बात कर रहे हो, मत बोलिएगा। और ये गलत होगा कि प्राइवेट सब खराब है, ये हमारे ना सोसाइटल परसेप्शन इंडिया के बहुत गंदे और फास्ट बन जाते हैं। 200 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज अगर दुनिया की लेंगे तो उसमें से 180 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। छोड़िए ये ना, हम टीका सेंटर ही बनने वाले 10 साल के बाद। प्राइवेट विल बी टॉप ऑन टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। बताइए सर ये तो बहुत कॉस्टली है। सो क्या होता आम है? आदमी किसने अफोर्ड कहा, नहीं कर किसने पाएगा। कहा फ्री? आम चलो आदमी आप बताइए, नहीं, एनीवेज सक्सेस रेट के बाहर बताइए, क्या देखोगे? सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? रिकवर हो गए पेशेंट हो तो 90 अबव ही हमेशा होंगे, और क्या देखोगे? सर्जरी मैंने स्पेसिफिकली मांगा है। आप मतलब तक का, और क्या देखोगे? चलो इसके अलावा क्या देखोगे हॉस्पिटल में? इफ आई वर यू, आई वुड बी लुकिंग पोस्ट सर सर्जिकल। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देखेंगे, वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं, स्टाफ कैसा है, सारी चीजों को देखने के बाद ही डिसाइड करेगा आदमी भाई यहाँ पे ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है। फिर वो कॉस्ट भी देखेगा उस चीज की। हाँ सर, जो आपने मेंशन पहले करा था कि पैकेज, मतलब वो भी देखना होगा। पैकेज भी देखना जरूरी है ना, हर कोई अफोर्ड थोड़ा कर लेगा। जी 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 जी। I would be looking more into post सर operate. ये आपने जो बात की ये वैसे ही है जैसे BMW की सर्विसिंग और मारुति की सर्विसिंग। मारुति की सर्विस, नई गाड़ी सस्ती भी होती है और उसकी सर्विसिंग भी थोड़ी जेब पे भारी नहीं पड़ती, पर BMW देखने में भी भारी लगती है, चलाने में भी भारी है और खर्चा भी भारी है। तो डिपेंड करता है कि आपके पॉकेट में क्या पैकेज का सिस्टम है। सही बात विपुल जी, डिपेंड जेब पर करता है कि आपकी जेब कितनी भारी है। बिल्कुल। तो फिर तो सवाल ही खराब है, सवाल ही बेकार है। मतलब सर लेमैन कैसे कराएगा इलाज? हाँ, तो यही आ गए ना आप टिपिकल सवाल पे। बेसिकली वी आर टॉकिंग, ज्यादा है 80% तो टिपिकल क्लास ही है, तो सवाल तो वहीं से जनरेट होता है। नो वी आर टॉकिंग आप अबाउट, अपर क्लास को ना देखें, आप लोअर क्लास को देखें, सबसे वीक स्टूडेंट को देखें। Himanshu sir, we are talking. जी सर, जी सर। We are raising a concern and the question. We are not in the class of sociology. Neither we are in the class of political science. Let's not always bring in the light of political science and सर आपकी बात sociology. सारी सही है। जब हम मेडिकल फील्ड की बात करेंगे तो मेडिकल फील्ड में भी तो अब बीमार तो आदमी ही पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इलाज तो सबको चाहिए। सर अभी ये बात करने से कुछ होगा नहीं, बिकॉज आप JNU के प्रोफेसर से बात कर रही है, याद रखिएगा। आपसे ज्यादा बोलने के लिए हम नोन हैं, तो आप गलत तरीके से मत घुसिएगा, क्योंकि ये ट्रैक ही गलत है। आपको लग रहा है बहुत सीधा है, मगर मैं बोल रहा हूं आपको, हम
जब सवाल पूछ रहे हैं हम जब ये मैटर नहीं करता कौन जेएनयू से कौन आईआईटी से है सर। मैं भी आप ही के बगल में से पास आउट हुआ हूँ डीयू से। ऐसा नहीं है, डिबेट का विषय है या कोई क्वेश्चन का विषय है तो वो तो पूछा जाएगा ना। तो सुनिए ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं कि अगर किसी को चॉइस करना है, चॉइस कौन करेगा? जिसके पास चॉइस है। वही पे आंसर है, आपके सवाल में ही आंसर है। दोज हु डोंट हैव चॉइस विल नॉट मेक चॉइस। तो हम उनकी क्यों बात करेंगे? बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं आंसर। ठीक है सर, हाँ, ठीक है तो सर, ठीक है। उनकी बात नहीं करेंगे जिनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो वहीं पे जाएंगे जो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो 90% क्यों ना हो। वी आर आस्किंग, गिवन अ चॉइस, आप कहाँ जाना पसंद करोगे और क्या क्राइटेरिया पे आप चॉइस करोगे, ये बात है। तो इसमें कहाँ आ गया सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उसमें विषय ही नहीं है वो तब आ जाएगा जब हम आम और खास सबकी बात कर रहे हैं। मगर हम सबकी बात नहीं कर रहे, बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर, दैट्स अ फ्रेज इन ब्रिटिश इंग्लिश। जो बेचारा है वो कहाँ चॉइस कर सकता है? वो तो वहीं पे जाएगा जहां पे उसके लिए लाइन लगी हुई है फ्री में, वहीं पे जाएगा बेचारा। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about given a choice, if I have to make, I will choose the hospital. ये सब चीजें सभी के लिए बात करनी चाहिए ना, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए तो नहीं कर सकते ना ये सब चीजें। नहीं, ऐसे नहीं होता है, जनरल नहीं होता है। बट गिवन अ चॉइस, इसीलिए शब्द यूज किया ना मैंने, गिवन अ चॉइस। इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस, हाउ वुड यू मेक अ चॉइस? ये पर्टिकुलर की बात नहीं है, बाकी लोगों के लिए जो सिस्टम है सिस्टम है भैया। यही तो है सच दुनिया का, कि कोई पेरिस में जाके ट्रीटमेंट लेता है तो कोई न्यूयॉर्क में जाके ट्रीटमेंट लेता है। क्यों लेता है? कोई तो भरोसा है। तो दैट इज व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन हियर इज कि व्हेन समबडी इज मेकिंग अ चॉइस ऑफ अ हॉस्पिटल। अमित जी आपका जरा म्यूट करिएगा। हाँ, व्हेन समबडी इज मेकिंग अ चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया वुड बी the expertise of the doctor. And how would I judge the expertise of the doctor? By the two things: the time taken for recovery, because by and large everybody should recover, so वो success rate तो more or less redundant होगा, right? वो जरूरी नहीं है, मगर कितनी rapidly recovery हो गई वो देखी जाएगी। और दूसरा होगा कि what are the post surgical complications reported, are there? कि सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद कुछ और हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट? रिकवरी हो गई यही बता देंगे आपको, 2 दिन प्लस माइनस बता देंगे। बट वहां पे जाकर किसी को इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन डील करते समय फिर वो पेशेंट को कोई दगा फटका हो गया, वो चीजें हमें एक भी केस मिलती है तो हम उस हॉस्पिटल को अवॉइड करना चाहिए। Am I making sense now? Does this make sense? Right, sir. Yes, sir. आप यहाँ पैसा देकर जा रहे, ये फ्री में नहीं है, आप पैसा देकर जा रहे। So you want to make sure that since you are going to pay a huge amount of money, you would like to make sure that every 1 rupee spent, every penny spent is worth. तो कम से कम समय में जितना मिनिमम लगता है मेडिकली, उतने समय में पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आना चाहिए और उसमें कोई पोस्ट सर्जिकल इवेंट होना नहीं चाहिए, राइट? दीज आर द 2 थिंग्स विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द हॉस्पिटल। समझ गए? ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो फैसिलिटी है तभी तो इतना रैपिड रिकवरी हो गई, डॉक्टर एक्सपर्ट है तभी तो अच्छा हो गया, वहां पे हाइजीन मेंटेन किया जाता है तभी तो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन नहीं हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। So these are the criteria one should take into consideration. ठीक है, effluent treatment plant and sewage treatment plants are being made. So basically, in summary, biomedical waste management duties of all stakeholders at healthcare facility, labs, collection centers, home care, quarantine centers, with social distancing, hand hygiene, personal protective equipments, respiratory etiquettes, and
all the time to time improved the guidelines. Those are being followed out. So we take a break here for some time then. Is that okay? Yes, sir. It is also a time to take. Yeah, and then we'll resume. We'll resume in 15 minutes. Yes, sir. क्या टाइम हो गया सर? 11:30 11:40, yeah, 11:40 is okay. 11:40 पे मिलते हैं सर. 45 पे सर 11:45 40 कर लेते, थोड़ा सा 5 मिनट पहले आ जाते ताकि थोड़ा टाइम मिलेगा अगले इसके लिए. ओके सर. ओके 11:40. जी जागड़ा जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाओ. चाय वाय पी लो भाई. हाँ, चाय अभी पियेंगे सर. आने वाले ठीक है, मिलते हैं सर ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद मिलते हैं सर. अरे जैसी इच्छा है बस दिल में रखना, दिल से नहीं हटाना. ओके. कितने बजे मिलेंगे विपुल जी? 11:40. 12:40 ठीक है. 12 नहीं 11. 11:40 सर. 11:40 ही कह रहा हूँ साहब. नहीं 12:40 आप. 1 घंटा बढ़ा दिया था महाराज. चलो ठीक है. ठीक है जी.